myself Meenu Kapoor. Welcome to my channel Code with MK. Today I'll tell you about Python basics. This presentation is basically for class 11th computer science students who just joined computer science class, and I'll tell you about Python basics. So first of all, what is Python? I'll not go in depth of it. In short, Python is a general purpose high level programming language. Programming language, you all know that in computers, if you want to automate something, if you want to make software for anything, you need a programming language. And in previous classes, you have learnt about that there are mainly two types of languages, low level and high level languages. Low level, which computer can directly understand, but they are very difficult for users, for human. But this is basically language of zeros and ones, that is binary language. High level language means English like language. They are very simple for programmers, but computer cannot directly understand them. Today we generally use high level languages for making programs, and Python is one of them, and it is general purpose language which can be used for many works, many types of works. Now, why Python? As there are many high level languages, C, C++, Java and many more. So why we are learning about Python? Python is the easiest language to learn and use. This is number one. But at the same time, it is the most powerful language today. As I told you in my first lecture that Python can be used for many purposes, and it is very powerful language, but at the same time it is very easy for students as well as for programmers. Now about history of Python. It is very interesting. Python is invented in Netherlands in early 90s, basically in 1989, by Guido van Rossum. This is the name of the person who has developed Python. Guido van Rossum was fan of Monty Python's Flying Circus. It is a famous TV show in Netherlands, and he was a fan of that program. So he named the language Python after Monty Python. So this is about the history of Python. Now उस पर्सन को देखना तो बनता है जिसने इस ब्यूटीफुल लैंग्वेज को डेवलप किया. So this is Guido van Rossum with his quote, Python is an experiment in how much freedom programmers need. Too much freedom and nobody can read another's code. Too little and expressiveness is endangered. So it is very clear that Python gives us a balance. As Guido van Rossum believes that too much of freedom should not be there and nobody can read another's code, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. So Python is a balancing language. Now about features of Python. Number one, easy to learn. That we have already discussed. Python is very easy to learn. As I told you in my earlier video that if in any other language, say in C++, you need to write 10 lines programs for a problem, in Python you can do it with two or three lines. Same way, if to make a software or program, it takes 15 days in C++ or C, then in Python you will take only 4 to 5 days to make the program. Next, easy to read. It is very easy to read Python programs. The statements, the words are very clear. They are English like, and any person can read it very easily.
easy to maintain. Once you make the program, then it is very easy to maintain that program. A broad standard library. Python is very rich in standard libraries. Standard libraries are basically where built-in functions are stored. So Python has a rich library. So for many things, programmers don't need to write the code. Already existing codes or functions can be used. There are lot of modules, lot of built-in functions in Python's standard library which the programmers can directly use. No need to write your own code for that. Open source. Open source means that Python is freely available, free of cost. Original Python you can download and its source code is available. Source code बच्चों अभी आप नए हैं तो source code मतलब कोडिंग, जो प्रोग्रामर ने पाइथन को बनाने के लिए कोडिंग लिखी होगी किसी लैंग्वेज में, वो भी अवेलेबल है एंड यू कैन रीड दैट कोड. सो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं इन्हें हम ओपन सोर्स कहते हैं. इनके दो फीचर होते हैं. एक, ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं, इनके लिए कोई आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है. ओरिजिनल सॉफ्टवेयर एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो python.org से आप इसका कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं. सेकेंडली, इसका सोर्स कोड अवेलेबल है. लेटर ऑन जब आप प्रोग्रामर बन जाएंगे तो आप उसका कोड देख सकते हैं एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट कोड एंड यू कैन मॉडिफाई द कोड अकॉर्डिंग टू योर requirements. So Python is open source. This is one of the main feature of Python. High level language, I told you earlier, it is English like language but it need to be converted into machine language. पोर्टेबल. पोर्टेबल मतलब होता है जैसे कोई भी चीज़ हम बोलते हैं पोर्टेबल मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आप जिसे इजीली ले जा सकते हैं. सो हेयर पोर्टेबिलिटी मीन्स दैट पाइथन कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म. कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, यूनिक्स यूज़ कर रहे हैं, मैक यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स यूज़ कर रहे हैं. सो आपने जो पाइथन पे प्रोग्राम बनाया है इट कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म. सेम प्रोग्राम, नो नीड टू मॉडिफाई इट. So portability is one of the features of Python. Interactive mode, this is very beautiful thing. I'll discuss in later slides in the same presentation. Python gives you interactive mode to work. That I'll discuss in detail in the same presentation. Object oriented language. Python is object oriented language. Again, as you are new to programming, so I'll tell you in very brief that mainly there are two types of languages. One is procedure oriented language, second is object oriented language, and Python is object oriented. What is the difference and which one is better? Procedure oriented programming basically emphasize on what to do. क्या करना है, प्रोसीजर, काम क्या करना है, उस पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं एंड वी डिज़ाइन द प्रोग्राम. और व्हाट टू डू पे कॉन्सेंट्रेट करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर प्रोग्रामिंग. बेटा इस पूरे वर्ल्ड में जितना भी हम प्रोग्रामिंग कर लें, जिस भी लैंग्वेज पे कर लें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेटा. डेटा मतलब जिसको मैनेज करते हैं. आप स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर बना लीजिए, आप बैंक के लिए सॉफ्टवेयर बना लीजिए, आप किसी बेकरी शॉप के लिए कोई छोटा सा प्रोग्राम या प्रोजेक्ट बना लीजिए, आप कोई गेम बना लीजिए, बट डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डेटा मतलब क्या स्टोर हो रहा है, क्या चीज़ हम मैनेज कर रहे हैं उसके थ्रू. गेम में भी डेटा होता है कि कौन सा कोई चीज़ किस पोजीशन पर है, कितना उसका स्कोर हो गया है किसी पर्टिकुलर प्लेयर का. सो एवरीथिंग इज डेटा. सो पूरी प्रोग्रामिंग में कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, कितना लंबा प्रोग्राम लिखा, कितना इजी, कितना डिफिकल्ट, ये सब एक तरफ. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी आर मैनेजिंग इन प्रोग्रामिंग इज अवर डेटा. सो दिस डेटा शुड बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली. इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वी इग्नोर दिस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज डेटा. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आप यहाँ पे इनिशियली ऐसा समझ लीजिए डेटा ओरिएंटेड.
सो पाइथन एक डेटा ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसमें डेटा पे ध्यान रखा जाता है. इट कॉन्सेंट्रेट ऑन हाउ टू डू. व्हाट टू डू तो है ही, क्या काम हमें करना है ये तो इम्पोर्टेंट है ही क्योंकि काम हमें करना है, बट ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हाउ टू डू. इसको कैसे करना है कि हमारा डेटा जो है वो अफेक्ट ना हो, हमारा डेटा कहीं गलत जगह इंटरप्रेट ना हो, गलत तरीके से चेंज ना हो जाए. सो पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं अपने डेटा के ऊपर, तो डेटा इजीली मैनेज करते हैं. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन ब्रीफ. बाकी धीरे धीरे जब आप आगे पढ़ेंगे आई विल टेल यू इन डीप कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. Embeddable scripting language. This is again very important feature of Python, that Python can be embedded in any other language. This is beautiful feature really. एक लैंग्वेज के कोड को आप दूसरी लैंग्वेज में एम्बेड कर सकते हैं. आपने कहीं पढ़ा भी है शायद पिछली क्लासेस में, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं हम. स्क्रिप्टिंग जैसे जावा स्क्रिप्ट, वीबी स्क्रिप्ट. सो पाइथन कैन वर्क एज स्क्रिप्ट लैंग्वेज ऑल्सो. दूसरी लैंग्वेज के अंदर आप इसके कोड को एम्बेड कर सकते हैं एंड यू कैन यूज इट एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के रूप में पाइथन काफ़ी पॉपुलर है. तभी मैंने आपको बताया भी था कि पाइथन इज ऑल्सो यूज्ड इन वेब डिजाइनिंग एज इट कैन वर्क एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. GUI programming, graphical user interface programming. Again, I told you in previous video that you can make games using Python. You can do 3D programming. Graphical user interface आप इसमें यूज कर सकते हैं और आप Python में GUI programming भी कर सकते हैं. Next is dynamic typing. Again, this feature I'll discuss in detail in my next presentation, but I'll tell you in brief what is dynamic typing. This is again a new feature of Python which was not available in other previous languages like C, C++, Java and VB. In every other language we need to give the data type of a variable initially. कोई भी वेरिएबल जैसे हमने डेटाबेस में भी किया था किस टाइप का होगा, उसमें हम टेक्स्ट स्टोर करेंगे, नंबर स्टोर करेंगे या कैरेक्टर स्टोर करेंगे या फ्लोट टाइप का नंबर स्टोर करेंगे. दिस वी हैव टू टेल इनिशियली टू द लैंग्वेज एंड आफ्टर दैट वी कैन यूज द वेरिएबल. बट इन पाइथन अ वेरिएबल कैन कंटेन एनी टाइप ऑफ वैल्यू. Initially you have given say a equals to 10. So a is a variable here and you are storing 10 in it. Later on you are giving a equals to Anuj. So here in a you are putting a string that is Anuj. So it will work in Python. And dynamic typing exactly kya hai, that again I'll discuss in detail in my next presentation as I told you. But एक शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया पाइथन में वेरिएबल का कोई डेटा टाइप फिक्स नहीं होता है. आप एक वेरिएबल में किसी भी मोमेंट पे उसमें वैल्यू चेंज कर दीजिए, उसका डेटा टाइप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है. सो ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्रोग्रामर्स को. इंटरप्रेटेड, ये आपने बेटा छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा. एज आई टोल्ड यू कि हाई लेवल लैंग्वेज नीड टू बी कन्वर्टेड इन कंप्यूटर्स लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज. सो फॉर दैट वी नीड ट्रांसलेटर्स to convert high level language into machine language. तो दो तरह के ट्रांसलेटर होते हैं हमारे पास, इंटरप्रीटर एंड कंपाइलर. ये आपने कुछ छोटी क्लासेस में पढ़ा है. इंटरप्रीटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बट लाइन बाय लाइन, हैंड टू हैंड. ये एक लाइन को पहले कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में और उसको एग्जीक्यूट करके हमें आंसर देता है. देन इट ट्रांसलेट्स सेकेंड लाइन and executes it. If there is an error in a line, then it stops. When the error is corrected, then it gives the output. So this is the functioning of interpreter. What compiler does? Compiler translates the whole program in one go. Say you have 50 lines program, तो compiler उस 50 lines को एक ही बार में translate करेगा. And if there are some errors, हैंड टू हैंड शो नहीं करेगा, वो सारी एरर्स एक साथ शो कर देगा.
जब आप सारी एरर्स को करेक्ट कर देंगे देन द प्रोग्राम विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। पहली लाइन भी जो आपकी चलेगी प्रोग्राम की, जो उसका आउटपुट आएगा वो कंप्लीट सारी एरर्स करेक्ट होने के बाद में आएगा। जबकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में पहली लाइन आपकी अगर सही है, करेक्ट है, इट विल बी एग्जीक्यूटेड एंड आउटपुट विल बी डिस्प्लेड। सेम इफ द सेकेंड लाइन इज करेक्ट एंड आउटपुट विल बी डिस्प्लेड। थर्ड लाइन में if there is an error, only there the interpreter will stop. You will correct the error, then the output of third line will be generated. So Python is interpreted language. Flexible, I told you previously also that Python is very flexible. You can use it for many purposes. यही प्रोग्रामिंग, ये बिजनेस प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ हो सकती है, ये साइंटिफिक प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ हो सकती है, गेमिंग के लिए यूज़ हो सकती है, वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो सकती है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ हो सकती है, और भी बहुत सारा। इसमें आप किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग आप पाइथन में कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज। आइडियली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, पाइथन जब आप इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर्स पर या मोबाइल्स पर, तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मीन्स एक ही प्लेस जहाँ पे आप टाइपिंग भी करते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल या ट्रांसलेट भी करते हैं, और वहीं पर आपका आउटपुट भी जनरेट होता है। दिस इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जबकि कुछ लैंग्वेजेस जैसे कि जावा आप टाइप नोटपैड में करते हैं, फिर उसे आप रन करते हैं और जावा के आपका आउटपुट अलग प्लेस पे मिलता है। बट इन पाइथन इट इज़ आइडियली एनवायरनमेंट मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यहीं पे आपको एडिटर मिलेगा जहाँ पे आप टाइप करेंगे, यहीं पे आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा और यहीं पे आप अपने प्रोग्राम को रन करके उसका आउटपुट देख सकते हैं। सो इट्स आइडियली। वर्किंग मोड्स इन पाइथन, पाइथन में दो मोड्स होते हैं काम करने के। अभी बीच में फीचर्स में भी आया था एंड आई टोल्ड यू दैट आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। वन इज इंटरैक्टिव मोड एंड सेकंड इज स्क्रिप्ट मोड। वन बाय वन आई विल डिस्कस। इंटरैक्टिव मोड मीन्स इन दिस मोड you can directly write commands on the command prompt. Command prompt you can see on screen. ये 3 greater than साइन आ रहे हैं जो मैंने येलो कलर में शो किए हैं। ये prompt है। prompt means कि पाइथन आपके कमांड्स को लेने के लिए रेडी है। आप इस प्रॉम्प्ट पे कोई भी कमांड्स दीजिए। कमांड देते ही as soon as you press enter key, your command is executed and output is shown on the screen. Means एक लाइन आपने दिया, हैंड टू हैंड पाइथन ने उसका आउटपुट आपको दे दिया। फिर आपने कुछ और दिया, पाइथन ने उसका आउटपुट आपको दे दिया। सो ये इंटरैक्टिव मोड कहलाता है। इसमें आपके कमांड सेव नहीं होते हैं। एक एक करके अगर आपको कुछ ट्राई करना है, कुछ करके देखना है, तो यू कैन वर्क इन इंटरैक्टिव मोड। आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ इंटरैक्टिव मोड। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटरैक्टिव मोड एंड यू कैन नोटिस these 3 greater than sign which is called Python command prompt where my arrow is moving. And here I am giving some command to Python, say 3 plus 5, and you can see the output 8. As soon as I pressed enter key, output 8 is displayed. Same way next command I am giving is print hello students. So print command is used to print anything. So hello students is printed hand to hand. 5 into 6, 30 is displayed. So this is how interactive mode works. This is Python prompt and you can give any command, any Python command, and it will show you the result hand to hand. Next is script mode. This mode is basically used to make programs. Here you give a set of commands. Set of commands मतलब प्रोग्राम जो हम अभी सीखेंगे कि कैसे बनाया जाता है। फिर हम इसको सेव करते हैं स्क्रिप्ट और प्रोग्राम की तरह और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। से मैंने 10 लाइंस का कोई प्रोग्राम लिखा तो वो 10 के 10 लाइंस मैं एक ही साथ पहले टाइप करूँगी, फिर उसको सेव करूँगी एंड देन उसको एग्जीक्यूट या रन करेंगे। हम एक एक लाइन करके काम हम नहीं करेंगे। सो जो उसका रिजल्ट है वो बाद में शो होगा जब हम सारा प्रोग्राम टाइप कर देंगे, सेव कर देंगे। सो हियर आर द स्टेप्स। वही सभी जैसे एप्लीकेशन में मेन्यू होता है ऊपर, पाइथन में भी यू विल फाइंड द मेन्यू।
फाइल मेन्यू में जाके आप न्यू पे क्लिक करेंगे, एक ब्लैंक स्क्रीन आएगी जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को टाइप करेंगे, फिर आप उसको सेव करेंगे, किसी भी नाम से एक्सटेंशन होगी .py, वो आपको खुद देनी पड़ेगी। जैसे हर एप्लीकेशन की अपनी एक एक्सटेंशन होती है, वर्ड की डॉक टेक्स होती है, पीपीटी के पावर पॉइंट की PPTX होती है, सेम वे पाइथन प्रोग्राम्स की एक्सटेंशन .py होती है। और उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। इसके डेमो के लिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। टुमारो विल स्टार्ट प्रोग्रामिंग एंड आई विल गिव यू डेमो हाउ टू मेक अ प्रोग्राम इन स्क्रिप्ट मोड। सो अभी हमने जो किया है वो पाइथन बेसिक्स के उसमें किया, और दो मोड के बारे में किया कि इंटरैक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। अगर आप मोबाइल ऐप पे काम कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था, तो उसमें आपको जो इंटरैक्टिव मोड है वो कंसोल के नाम से मिलेगा, और स्क्रिप्ट मोड जो है वो एडिटर के नाम से मिलेगा। बोथ आर सेम बट नेम्स आर डिफरेंट इन मोबाइल ऐप्स। कंप्यूटर में आप जिस तरह से मैंने स्टेप्स बताए हैं उस तरह से इसको यूज़ करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।